मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यह आसनसोल बाइक बाजार, अ मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग मोबाइल हॉस्पिटल है। शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। कुछ वक्त पहले हुई भाजपा नेता राजेंद्र साव मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जामुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर चौकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसी सेंट्रल कुलदीप एसएस ने कहा कि अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि जुए की वजह से शायद यह हत्या की गई। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से मोबाइल, आर्म्स और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। कल आरोपी रघुनाथ कर्मकार द्वारा घटना का पुनर्निर्माण कराया गया। গুলি করতে পারবো ছেড়ে রয়েছে কিভাবে কেন তোমরা চলে যাও আমরা और को पूरा पीछे नहीं आए रहे और को जानकारी और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस घटना को ধরো 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 কেন এই ঘটনা टोनी है तो मुमकिन हटाओ तो पीछे जिसका हो गया पीछे चरण सही है फोटो नहीं हाथ तो डूबा दीजिए अभी कौन पीछे से मोबाइल एकदम सटा दिया। अरे ये तो माँ तो बड़ी डिस्टर्ब करता है। बेटा मेरे लिए खाली मिस ना हो देख उधर उड़ नीचे तो हम काम ফ্যামিলি বলেছিল কি উনি ওনার কাছে 5 লাখ টাকা ছিল বলে, परंतु গাড়ি থেকে বা হসপিটাল থেকে কোনো টাকা রিকভারি হয়নি। और ডিউরিং ইন্টারোগেশনই মানে 26,000 টাকা রিকভারি হয়েছে, परंतु এভাবে এরকম টাকা এখন রিকভারি হয়নি। ওটা নিয়ে তদন্ত চলছে। আমরা শুনেছি যে এই আসাম কেস মানে ওটা ডাকাতি কেস ছিল, 2018 সালের ডাকাতি কেস ছিল। ওখানে সোনা দোকানে একটু ডাকাতি হয়েছিল, তো ওখানে একটু মানে एक मर्डर हुआ ड्यूरिंग डकैती, एक आदमी का जान गया था। तो ওটা নিয়ে ও ভিতরে ছিল জেল মধ্যে। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ও জেল থেকে মানে ছুটেছিল।
দীর্ঘ 1 বছর ধরে ঘটনার পরে ও প্রাইম সাসপেক্ট ছিল, মানে প্রথম অ্যারেস্ট থেকে আমি জানি কি রঘুনাথ যে আছে প্রাইম সাসপেক্ট ছিল, তো ওটা নিয়ে পুলিশ খোঁজ করেছিল। তো উনি যে আছে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, প্রথম গিয়েছিল বেঙ্গলোরে আমার মনে আছে, ওর আগে গিয়েছিল মুম্বাই, মুম্বাই থেকে নাগপুর, হরিদ্বার, এভাবে উনি ফরার ছিল। তো পুলিশ যে আছে ওনার পিছে মানে প্রচুর মানে টেকনিক্যাল ইনপুট নিয়ে ডিডি থেকেই টিম ছিল, ওটা সবাই মিले ওটাকে खोज खबर মানে उसका जो है ढूंढने का प्रयास हो रहा था। কিভাবে এই অভিযুক্ত ওটা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে কি আছে এক্স্যাক্টলি আপনি কিভাবে ধরলেন ওটাকে বীরভূম থেকে স্টেশন পাস থেকে ওটাকে ধরা গেল। আর উনি স্টুডেন্ট আছে, 3rd ইয়ারের স্টুডেন্ট আছে। উনি যে আছে যেখানে মানে যখন জুয়া চলেছিল, মানে ডামরাতে যখন জুয়া চলেছিল, তো উনি ওনার পার্টনার ছিল, মানে রঘুনাথ কর্মাকর ইজ মেন অর্গানাইজার অ্যান্ড শুভম রায় ইজ পার্টনার ইন দ্যাট জুয়া বোর্ড। এই শুভম রায় কি রাজনীতিক যোগ রয়েছে নাকি? আপনি শুনলেন তো, মোটিভটা বলে না না, আমি তো বলে দিয়েছি তো অলরেডি কি ওনার মধ্যে যে এমনিটি ছিল ওটা নিয়েই এই ঘটনা হয়েছে। আর্মসটা কি শুভম রায় দিয়েছিল? আর্মসটা শুভম রায় দিয়েছিল, ওনার থেকে প্রকাশ বলে এক আদমি ছিল, ওনার থেকে আর্মস নিয়েছে और ওনাকে দিয়েছে। तो क्या इनका कनेक्शन रेड लाइट एरिया से भी एक दिन पहले सूचना थी कि वो वहाँ जुआ खेल के लिए आए? 29 এপ্রিলে জামুরিয়া থানার আন্ডারে বগুড়া চুটিতে একটু ঘটনা হয়েছিল। ওখানে রাজেন্দ্র সাউ বলে একজন রানী সাহেব পিএস রানীগঞ্জ, ওখান থেকে এক মানে আদমি ছিল, ওনার স্করপিও মধ্যে একটা ডেড বডি রিকভার হয়েছিল। ওনার মাথাতে এক বুলেট ইঞ্জুরি ছিল, ওর উপরে স্পেসিফিক কেস স্টার্ট হয়েছে জামুরিয়া থানা আন্ডারে, ওর উপরে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। ওটার মধ্যে যে আছে টোটাল 4টে লোক অ্যারেস্টেড আছে। একটা আছে রঘুনাথ কর্মাকর, ওনার রোল ছিল মানে উনি প্রাইম অ্যাকিউজ ছিল এই কেস মধ্যে। উনি অ্যাকচুয়ালি ওখানে মানে গিয়ে ওখানে ফায়ার করে এখানে ঘটনাতে আঞ্জাম দিয়েছে। ও সেকেন্ড যে ছিল ওখানে রিহাং ছিল শুভম রায় সাউথ থানা থেকে, উনি ওনাকে আর্মস দিয়েছে। হয়তো উনি এক আদমি ছিল প্রকাশ বলে, ওনার থেকে ও আর্ম প্রকিউর করেছে। और शब्बीर থেকে উনি গুলিটা প্রকিউর করে এই কাণ্ডকে আঞ্জাম দিয়েছে অন 29 দুপুরে 2টার সময়। এখানে আপনি সবাই দেখতে পারে মানে ওনার ক্লোথ যে আছে রিকভারি হয়েছে, ওনার আর্মস রিকভারি হয়েছে, ওনার মোবাইল ফোন রিকভারি হয়েছে। এখন সিসিটিভিতেই দেখা গেল কি ও টাইমে মানে ঘটনার জাস্ট 5-10 মিনিট আগে ওখান থেকে ও ফাউল করে ওদিকে যাচ্ছিল। ওর ঘটনা করে মানে ফাউল করেই ও আগে বগুড়া চুট্টিতে গিয়ে ওখান থেকে টার্ন করে রাইট টার্ন করে গ্রামের রাস্তা হয়ে ও সাউথ থানা দিকে গিয়েছিল। ঘটনাতে পুরোপুরি ইনভেস্টিগেশন তদন্ত এখন চলছে। এখন প্রাইমারি মোটিভ যে দেখা গেল কি রাজেন্দ্র সাউ যে ছিল উনি মানে গ্যামলিং মধ্যে প্রচুর অ্যাক্টিভ ছিল। জায়গাতে যেখানে গ্যামলিং হয় ওখানে ও মানে গ্যামলিং খেলার জন্য যায়, ডামরাতেই যায় মানে মাইথানতেই যায়, আন্ডালতেই, ও যেখানে খেলা হয় ওখানে ও যায়। তো রঘুনাথ কর্মাকর যে আছে ওনার ডামরাতে একটু মানে জুয়া ছিল, জুয়া অর্গানাইজ করেছিল। তো ও জুয়া ওখানে রঘুনাথ কর্মাকর ওখানে যে আছে রাজেন্দ্র যে আছে ওখানে জুয়া খেলার জন্য যায়। তো হতে পারে কি ওখানে ওনার কোনো এমনিটি ছিল, জুয়া বোর্ডে কিছু ঘটনা হয়েছিল, ওনার মধ্যে ওনার কিছু দুশ্মনী হয়েছিল, ওটা নিয়ে পুরোটা আঞ্জাম মানে ঘটনাতে আঞ্জাম দিয়ে মানে ঘটনা ঘটেছিল। ওনার যে লোকেশনতে পাওয়া যাচ্ছে কি ঘটনার 2 দিন আগে উনি কন্টিনিউয়াস টাচে ছিল। উনি এখানে রানীশাহের মোড়ে একবার মানে অ্যাকিউজ অ্যান্ড ভিকটিম রঘুনাথ কর্মাকর অ্যান্ড রাজেন্দ্র যে আছে ওনার একটু মিটিং হয়েছিল 27 তারিখে 28 তারিখে 2 মিটিং হয়েছিল। ওর উনি হতে পারে তো জানতে পারবে কি উনি ওদিন এখানে মানে আসতে পারবে, ওর কিছু প্ল্যানিং ছিল। তো ওখানে ও যেখানে মানে ওখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে উনি মানে ওখানে ফায়ার করে ওনাকে मर्डर করে দিয়েছে। মানে 12-13 साल से जो कि जुआ में ही है, जो जुआ में लोग थे, तो दोनों का एक दूसरे से पहले से ही नोन था और पहले से एक दूसरे संबंध था। थैंक यू। ठीक है सर। सामाजिक संस्था आवाज की ओर से कल रानीगंज के कोयला भवन में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया।
संगठन के राज्य अध्यक्ष सईदुल हक, जिला अध्यक्ष इफ्तिखार नायर, सचिव नोमान असफर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि WBCS की परीक्षा में बांग्ला भाषा को इसी साल से कंपलसरी करने से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को समस्या होगी। उन्होंने इसे पोस्टपोन करने की मांग की। साथ ही बांग्ला स्कूल के अलावा बाकी स्कूल्स में भी बंगाली टीचर्स की नियुक्ति करने की बात रखी। इसके अलावा आलिया यूनिवर्सिटी को बचाने एवं राज्य के मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति करने की मांग की गई। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जो मुस्लिम समुदाय के लिए गर्व का विषय है, वो राज्य सरकार के कुछ लोगों द्वारा बेची जा रही है। आवाज़ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उनके अधिकार की रक्षा के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। पिछले दिनों भी बहुत सारा प्रोग्राम हम लोगों ने किया है माइनॉरिटी के अधिकार को लेकर के। आज हम लोगों ने अपनी ज़िला कमेटी की मीटिंग यहाँ बुलाया था, पश्चिम बर्धमान ज़िला कमेटी की मीटिंग में। इस मीटिंग में भी कुछ डिसीज़न हुआ है हम लोगों का, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने आज हमारे बीच में आवास के पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर सईदुल हक साहब हैं, वो आवास की तरफ से पूरी बात जो है आपके सामने में रखेंगे। कुछ डिसीज़न हम लोगों ने किया है, आवास का कुछ वो व्यू है, उस व्यू को आप लोगों के सामने में रखने के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो बातें हुई हैं आज की मीटिंग में और आवास का क्या मोटिव है, क्या करना चाहता है, वो पूरी डिटेल्स बात जो है वो सईदुल साहब आपके सामने আমরা গড়ে তুলেছি, তার বয়স হলো 4 বছর হলো। এই সংগঠনটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ একটা সামাজিক সংগঠন। সব ধর্মের মানুষ থাকতে পারে যারাই গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। এই সংগঠনটা তাহলে কাজ করবে কাদের জন্য? কাজ করবে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য, রিলিজিয়াস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিস। তাই আমরা নাম দিয়েছি ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড সেকুলার প্ল্যাটফর্ম ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিস। আমরা রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলনটা করছি এখন, যে আমাদের রাজ্যের গর্বের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন খতম তালিকায় চলে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার তার গ্রান্ট বন্ধ করে দিয়েছে। একজন ভিসি তাকে হচ্ছে তাড়িয়ে দিয়ে টেম্পোরারি একজন ভিসি করেছে। এইভাবে টেম্পোরারি ভিসি করা যায় না। মাদ্রাসা বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে টেম্পোরারি রেখেছে এবং রাজ্য সরকারের যে গ্রান্ট, সেই গ্রান্ট বন্ধ রেখেছে। আলিয়া ইউনিভার্সিটির এখন হচ্ছে নেট টেট পরীক্ষা বন্ধ হয়ে আছে। এমনকি ইউজিসির যে ন্যাক মূল্যায়ন, সেই মূল্যায়নও হয়নি। অথচ 7,000 ছেলে মেয়ে পড়ে আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে, তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে মাইনরিটি, তার বাইরেও অন্যান্য ধর্মের ছেলেরাও পড়ে, ছেলে মেয়েরা। বলে আমরা চাইছি আলিয়া ইউনিভার্সিটিকে পুনরুজ্জীবন করে বাঁচাতে হবে। তার জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না। যে উদ্দেশ্যে নতুন বিভাগ ও হোস্টেল খোলার জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছিল বাম জামানাতে, সেই জমিগুলোর পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে সেই ব্যবহার করতে হবে। রাজ্য সরকার সেই জমি কেড়ে নিতে পারবে না। এই দাবিতে আমরা অবস্থান করেছি। রাজ্য জুড়ে আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেইন করছি এবং ইতিমধ্যে আন্দোলন হয়েছে। ওই আন্দোলন করতে গিয়ে আনিস খান খুন হয়েছে। আমাদের 2 নম্বর দাবি রাজ্য জুড়ে যেটা হচ্ছে, সেটা হলো রাজ্যের যে মাদ্রাসা শিক্ষা আছে, 614টা মাদ্রাসা এডুকেশন আছে, সেন্টার আছে, সেই মাদ্রাসা শিক্ষা আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা ইতিমধ্যে ডিএমের কাছে, ডিআইয়ের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে যে এই উর্দু হিন্দি বিদ্যালয়গুলোতে বহু শিক্ষক নেই, ফলে সেগুলো খুব ক্ষতির মধ্যে যাচ্ছে। আমরা বলেছি মাদ্রাসা শিক্ষা যেখানে আছে সেখানেও শিক্ষক নেই, সেখানেও শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্রাসা শিক্ষাগুলোকে পুনরুজ্জীবন করতে হবে। কারণ এই মাদ্রাসা শিক্ষাও হচ্ছে যে সংখ্যালঘুদের একটা গর্বের প্রতিষ্ঠান। রাজ্য জুড়ে আর যে বিষয়ে আমরা আন্দোলন করছি সেটা হলো যে ওয়াকফ সম্পত্তি, এটা মুসলিমদের গর্বের সম্পত্তি। এ দিয়ে সংখ্যালঘুদের নানা উপকার করা যায়, কিন্তু আজকে বহু জেলাতে ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, বেআইনিভাবে দখল করছে এবং কোনো কোনো জায়গায় শাসক দলের যারা মাফিয়া বা হচ্ছে যারা নেতৃত্ব, তারাও হচ্ছে যে এই ওয়াকফ সম্পত্তিকে বেআইনি বিক্রি করাতে মদত যোগাচ্ছে। আমরা যত সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করে ওয়াকফ সম্পত্তিকে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কাজেই লাগানো হোক, এই দাবিতে আমরা রাজ্য জুড়ে প্রচার করছি।
আমাদের এটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন চলছে। আমি এটা কপি নুমানকে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা ফটো তুলে নিতে पारें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लगातार पिछले 4 सालों से आपकी सेवा में बना हुआ है आसनसोल बाइक बाजार, अब मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर शोरूम। बाइक और स्कूटी के सेल्स के साथ ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा ई-रिक्शा और स्कूटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। साथ ही पुराने बाइक या फिर स्कूटी को कराना हो एक्सचेंज तो चले आइए आसनसोल बाइक बाजार। फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट अप टू ₹5000। तो फटाफट नोट करें हमारा एड्रेस, SB गोराई रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। हिंदी भाषा के विकास व प्रचार प्रसार के लिए आज आसनसोल नगर निगम में हिंदी एकेडमी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। भोला कुमार हेला ने बताया कि इस सभा में आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई गण्यमान्य लोग खास तौर से उपस्थित हुए, जिनके माध्यम से हिंदी भाषा की शिल्पांचल में प्रगति की जाएगी। साथ ही अन्य भाषाओं में लिखे साहित्य को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाएगा।
मैं इसके बाद मैं हमारे गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर उनको सम्मान करूं। रानीगंज के हमारे पूर्व बनने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी पांडेदा मैं अनुरोध करूंगा संदीप भलोटिया जी को हम सम्मानित करने के लिए चाहेंगे कि डॉक्टर रमेश सर को सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं हमारे काउंसलर तनु चक्रवर्ती जी को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करूंगा। इसके बाद मैं हमारे और एक चेयरमैन श्रीमान जाते हैं, फोटो खींचते हैं, आपका छपते हैं, लेकिन उसका कोई बड़ी खुशी की बात है आज पत्रकार का भी सम्मान किया गया। पत्र पत्रिका निकले, मैगजीन निकले, लोग पढ़े, घर घर पहुंचे। आजकल तो सब ईमेल से हो जाता है, गूगल से हो जाता है, लोग देख लेते हैं। जैसे कर प्रसाद की कविता सुने, पढ़ता नहीं है। मेरी 4 किताबें हैं। जैसे पहली किताब प्रसाद पंत निराला महादेव पर, दूसरी किताब महादेव वर्मा पर, तीसरी किताब डॉक्टर राहुल पर और चौथी किताब हाल ही में संदीप भालोटिया जी वगैरह का बड़ा सहयोग मिला है प्रेमचंद के कथा साहित्य पर, सब समय तक है। और इसकी भूमिका लिखी है वर्ल्ड के जो फेमस राइटर हैं वह कमल किशोर गोयनका। इसलिए हिंदी एकेडमी का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज के विशेष करके युवा वर्ग और अनपढ़ लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित कीजिए। युवा युवतियां आज जो शिक्षण से अध्ययन अध्यापन से जो मन हटा रहे हैं तो उनको जो है प्रेरणा दें, उनको प्रेरित करें, जिससे आज रिजल्ट तो अच्छा हो रहा है, फर्स्ट क्लास। या कोरोना में क्या क्या हुआ जानते हैं, लेकिन उनसे पूछिए, जब पूछने जाते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा, रामायण किसने लिखी है, बोला तुलसीदास ने। तुलसीदास ने रामायण लिखी है, बोला सर सॉरी सूरदास ने। वाल्मीकि ने लिखी है, संस्कृत भाषा में। कहाँ में सकते हैं, नेता जैसे बोलते हैं कि क्या भाषा जो तुम जानते हैं, प्रेमचंद के काव्य को हम पढ़े हैं और दिनकर के उपन्यास को पढ़े न। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है हिंदी एकेडमी की तरफ से? आज हिंदी एकेडमी की पहली सभा बुलाई गई है आसनसोल नगर निगम में। हम लोग इस इलाके के, हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार और समाजसेवी, जिनके माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के इस नगर निगम में आसनसोल में हम लोग आसनसोल की धरती पर हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी की प्रगति कर सकें। और हिंदी एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में हमको जोड़ती है, तो इस भाषा का प्रचार प्रसार और विभिन्न भाषाओं में, चाहे बांग्ला हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे साहित्य हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में सभी लोगों तक वो पहुँचे। और साहित्य के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा भाषी के जो शिक्षा में जो भी हम सब सहयोग कर सके, इन प्रबुद्ध ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन के आधार पर, वही हम लोग भविष्य में करने जा रहे हैं। आपको परिचय? मेरा नाम भोला कुमार है। मैं आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जो हिंदी एकेडमी का गठन हुआ उसका मैं सचिव नियुक्त किया गया हूँ।
রাইফেল ক্লাবের সদস্যগণ, আমার সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সমবেত ভক্তবৃন্দ, আজকে আমরা আমাদের ক্লাবের ইতিহাস সদস্য অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মসজিদ স্কাউট ফাউন্ডেশনের যারা কর্তা, তিনিও আছেন। বিদেশের মানুষকে সাফল্যতা এসেছিল। এবারে সে আরও উন্নতি করে এসেছে গোল্ড এবং টিভিতে সিলভার নিয়ে এসছে জার্মানি ট্যুর থেকে জুনিয়র ওয়ার্কিং ও পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলা এবং ভারতবর্ষের পক্ষে বাবা এবং মাকে যাদের অখণ্ড সহযোগিতারা সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে ছেলের পেছনের পেছনে ঘুরে যাচ্ছে, তাকে যাতে আরও সাফল্যতম জায়গায় পৌঁছতে পারে। আমরা সবারই কাছে অলমাইটি গণনা আমি আমাদের প্রেসিডেন্ট ও লাইব্রেরি প্রেসিডেন্ট দিতে এবং আমাদের গ্রামের সদস্য তাকে অনুরোধ করি। ভেরি গুড আফটারনুন, ওয়ার্ম আফটারনুন। যারাই এসছেন আসানসোল রাইফেল ক্লাবের এই আজকে ये मंजीत और फाउंडेशन की तरफ से ये हम लोग ये दे रहे हैं। की तरफ से अभिनव शाह को ये एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और एक चेक 21,000 का प्रदान किया जा रहा है। हेलो शुक्रिया जी, आपके आइए, आ जाओ आपके अंदर ना, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, पेरेंट्स पे आ जाओ। ये हम लोग इनको आज का जो हम लोग ने प्रोग्राम यहाँ किया है आसनसोल राइफल क्लब में, ये प्रोग्राम हम लोग ने किया है अभिनव शाह जो हमारे गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, वहाँ पर सूल जर्मनी में वो वहाँ से 10 दिन पहले मेडल जीत करके आया है। तो उसी के सिलसिले में आसनसोल राइफल क्लब का सदस्य होने के नाते और पहला इंटरनेशनल मेडलिस्ट हमारे आसनसोल राइफल क्लब का होने के नाते हम लोग ने ये आज एक प्रोग्राम किया है उसको फेलिसिटेट करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए और उसको आगे का ताकि उसका मार्गदर्शन सही रहे और उसको प्रेरणा देने के लिए कि आगे भी वो इसी तरह का परफॉर्मेंस करता रहे, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, आसनसोल राइफल क्लब का नाम और देश का नाम रोशन करे। ये लेकर के हम लोग ने आज ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में हमारे माननीय मंत्री मलाई घटक का भी आने की बात थी, लेकिन आज उनको कलकत्ता में सीएम के साथ मीटिंग थी इसलिए वो आ नहीं पाए और उन्होंने अपना जो है शुभकामनाएं जताई थी इस प्रोग्राम के लिए और ये प्रोग्राम हम लोग ने आज ये किया है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।